Very good morning, my dear students. I'm Meghna, and we are back with a new video on lines and angles. This is the last video of this chapter. Hope you have understood the chapter. You have understood the basics of the chapter. And in this class, I'm going to take the miscellaneous questions, right? And in the previous videos, I took the basic questions, basic concepts, and basic questions of NCERT, right? In this video, I'll be taking some more important questions. So my first question is, if two parallel lines, we won't be given the figure in this. If two parallel lines are intersected by a transversal, अब आपको ये statement समझ के figure create करनी है, right? If two parallel lines, say AB is parallel to CD, तो मैं लिखती जाऊंगी जो मैं create कर रही हूँ. AB is parallel to CD. This is AB and this is CD, right? Two parallel lines are intersected by a transversal. So let it be a transversal. Intersect हुआ ये इससे. Prove that. What we have to prove? Check. The bisectors of interior angles. किसके bisectors? Bisector means जो दो equal parts में divide करें. किसके bisectors? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. या तो हम ट्रांसवर्सल का लेफ्ट पोर्शन ले या ट्रांसवर्सल का राइट पोर्शन, सेम साइड लेना है. तो आई एम गोइंग टू टेक राइट पोर्शन ऑफ दिस ट्रांसवर्सल. सो यू हैव टू प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स. अब सी, ट्रांसवर्सल के राइट पे चार ही एंगल्स हैं, 1 2 3 4. नाउ वी हैव टू टेक द इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है, राइट? अब उसके बी बाइसेक्टर की बात हो रही है. लेट इट बी द बाइसेक्टर और यहाँ पर ये बाइसेक्टर हो जाएगा, राइट? प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स. तो वो जो बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि पी क्यू एंड आर क्यू, ये जो बाइसेक्टर्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. दैट मीन्स मुझे ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव एंगल Q इज 90 डिग्री. शैल वी बिगिन? अब इसमें गिवन एक तो ये है कि ये इक्वल है, तो लेट इट बी x ईच. x ले लो दोनों को, ये हो जाएंगे x. अगर ये इसके इक्वल है तो लेट इट बी y. कोई डाउट इसमें? अभी देखो यहाँ पर क्योंकि PQ is the bisector, I'll mention PQ is the angle bisector. PQ is the angle bisector. This implies in angles को एक बार लिख देते हैं. Angle BPQ, angle BPQ is equals to angle QPR and assume it as x. I have assumed it as x, right? Similarly, अगर PQ angle bisector है, next angle bisector is RQ. RQ is the angle bisector. This implies angle, अब देखो ये वाला एंगल क्या होगा? DRQ. Angle DRQ is equals to, this angle is equals to this angle QRP. QRP and I have assumed it as y. ठीक, इतना मेंशन करना एक बार नीडेड होता है. जो भी हम लोग एक्स्ट्रा खुद से assume कर रहे हैं, we have to mention that facts, those facts, right? So अभी यहाँ पर now the question begins here. कुछ नहीं है, 2-step question है. This AB जो चीज given है उसका यूज करेंगे, right? AB is parallel to CD. This implies angle BPR plus angle DRP. यानी कि मैं किन एंगल्स की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ ये जो मैंने रेड मार्क किए हैं, राइट? ये वाले जो दो एंगल्स हैं, क्या वो को इंटीरियर बनाएंगे? एंगल BPR plus angle DRP. This is equals to 180 degree को इंटीरियर, राइट? तो BPR को मैंने लिखा x plus x,
DRP को मैंने लिखा y plus y and this is equals to 180 degree. So 2x plus 2y this is equals to 180. This implies that x plus y is 90 degree here. Now I have to find angle Q. ये समझ आ गया ना, ये 90 कैसे हुआ, 2 कॉमन लिया और वहां जाकर के डिवाइड हो गया. नाउ इन ट्राइंगल PQR, in triangle PQR, angle x plus q plus angle y, x plus angle q plus y and this is equals to 180 degree. Angle sum property, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इज 180 डिग्री, राइट. सी अभी यहाँ पर x प्लस वाई मुझे पता लग गया, माई x प्लस वाई इज 90, तो मैं x प्लस वाई को एक साथ लिख लेती हूँ, प्लस एंगल q दिस इज इक्वल्स टू 180, 90 प्लस q is 180 and my angle q will be 180 minus 90. Angle q will be 90 degree and this is my solution. देखो इसमें कुछ नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर दोनों इक्वल, ये एंगल बाइसेक्टर दोनों इक्वल, बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. अब क्योंकि ये और ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कोइंटीरियर एंगल्स लगाया, मार्क द एंगल्स विद रेड, थोड़ा सा डार्क कर रखा है. तो मैंने ये कोइंटीरियर 2x plus 2y 180 हो जाएगा, x plus y 90 हो जाएगा, और फिर इस ट्राइंगल के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो q आ गया. अब ये क्वेश्चन अगेन 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि वो बाइसेक्टर्स, ये वाला एंगल कितना होगा, इट विल बी 90 डिग्री, राइट. ओके, विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. My next question is very simple question. See, this is a straight line. Two rays are here. This angle is x. This is x plus 10, and this is x plus 20. बहुत ही simple है. Can you find x? You have to find x. कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, मैं नाम नेमिंग कर देते हैं इसे POQ, राइट. सो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन है, तो उनके ऊपर जितने भी एंगल है उनका सम विल बी 180 डिग्री. तो दिस इंप्लाइज x plus 20 plus x plus 10, this will be 180 degree. Reason will be angles on straight line, right. So be 3x plus 30 is 180 degree. So 3x is 180 minus 30. This 3x will be 150 and x will be 150 upon 3. X will be 50 degrees. Very simple question, right? तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस यू कैन बी आस्क्ड. सो ये बेसिक्स पता होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फैक्ट. जो मैं अगले 2 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, वो 2 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस एटलीस्ट उनमें से एक तो एग्जाम्स में आता ही है. अभी तक देखा गया है कि उनमें से एक तो पेपर में आता ही है, राइट. चाहे वो बेसिक लेवल पेपर हो, चाहे वो कैसा भी हो. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था आई विल डिस्कस एन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन माय नेक्स्ट वीडियो, राइट. वो डिस्कस करेंगे, साथ में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इन 2 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, राइट. ओके, आई एम गोइंग टू टेक एनसीईआरटी एग्जाम्पल फर्स्ट. This is, I suppose, last example of NCERT.
बिगिन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो वेरी सिंपल फिगर राइट। इस क्वेश्चन में what we are given that this BO and this CO are angle bisectors. BO and CO are angle bisectors. अगर ये BO एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो मैं इन्हें बोल देती हूँ x। दोनों इक्वल है, बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल होंगे तो x ईच हो जाएगा। अब सिमिलरली CO एंगल बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा अपने पास y। जिस तरीके से अभी तक हम लिखते आ रहे हैं BO इज द एंगल बाइसेक्टर, सो दिस इक्वल्स टू x से वो आप लिखेंगे। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, सो मैं इतना कंज्यूम नहीं कर रही हूँ बोर्ड स्पेस राइट। इससे भी मैं यहाँ लिख देती हूँ आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स है तो ये पता लग गया ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है इसके, ठीक है। अभी what we have to prove that this angle BOC, ये x और y है ट्राइंगल के अंदर, तो मैं इसे z बोल देती हूँ राइट। इस z को एंगल BOC को I have to prove it equals to 90 minus half of angle A, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A को मैंने एज्यूम कर लिया दिस इज माय एंगल 1। सो अब देखो यहाँ पर x है, y है, z है, इवन मैं यहाँ पर इसे एंगल 2 एज्यूम करूंगी, इसे एंगल 3 एज्यूम करूंगी राइट। अब BOC एंगल को मैंने क्या बोला है, BOC एंगल इज माय z एंड दिस इज 90 माइनस हाफ एंगल A। एंगल A क्या है, एंगल 1, तो यानी कि हाफ ऑफ एंगल 1। तो मुझे अगर ये प्रूव करना है तो जस्ट चेक इट आउट, मुझे मेरे रिजल्ट में क्या चाहिए, I need Z and I need angle 1। Z और एंगल 1 के अलावा जितने वेरिएबल्स हैं उन सबको रिमूव करना है। अपना यही टास्क है, हमें ये नहीं देखना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है राइट। सही, Z चाहिए, एंगल 1 चाहिए। अब अगर मैं देखो 4 कंडीशंस लगेंगी इसमें। पहली कंडीशन ऊपर वाला ट्राइंगल लेती हूँ, एंगल 1 + 2 + 3 is 180। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड विल बी x + y + z is 180 राइट। बाकी की दो कंडीशंस सी, ये हो जाएगा, ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी 180 होते हैं, x + एंगल 2 180, 3 + 5 + 5 180। तो वी हैव 4 कंडीशंस हियर। दो में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और दो में एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन राइट। चलो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं, क्या है राइट। एंगल 2 + x + x = 180। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। तो मैं ये बोलूंगी एंगल 2 + 2x, दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली, 180 - 2x। क्लियर हुआ ये। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बोला कि मैं 4 कंडीशंस लगाऊंगी। आई एम गोइंग टू मेक अ पार्टीशन हियर टू अप्लाई अदर कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो जाएगी 3 + 5 + 5। सेकेंड कंडीशन विल बी एंगल 3 + y, this is equals to 180। Again reason will be angles on straight line, right? So this will be angle 3 + 2y, this is equals to 180 and angle 3 will be 180 - 2y। देखो दो कंडीशंस तो मैंने अप्लाई कर दी, क्या यहाँ पर भी एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर भी एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब दो कंडीशंस क्या बची हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो लेट अस प्रोसीड विद थर्ड कंडीशन, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एक पार्टीशन बना देते हैं सो दैट क्लियर रहे। सिमिलरली x + y + z is equals to 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4 कंडीशंस लगाई। आई एम रिपीटिंग अगेन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। 4 कंडीशंस और मेरा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। बस मेक श्योर मुझे z और एंगल 1 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए राइट। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पर
पुट करते हैं एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 विल बी 180 minus 2x, angle 3 will be 180 minus 2y, this is equals to 180, ये 180 से ये 180 कैंसिल। अब इसमें क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव्स दोनों हैं तो मैं क्या करूँगी, पॉजिटिव्स को एक साथ रखती हूँ, नेगेटिव्स उधर ले जाती हूँ, दिस विल बी 2x प्लस 2y, राइट। एंगल 1 प्लस 180, यहाँ से मैंने ले लिया 2 कॉमन। अब देखो एंगल 1 वी नीड बट x प्लस वाई नहीं चाहिए, राइट। तो x प्लस वाई वहां से इवेल्युएट कर लूंगी, x प्लस वाई क्या आ जाएगा 180 माइनस जेड, आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इट हेयर, तो ये क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस 180 इक्वल्स टू ट्वाइस 180 माइनस 2z, राइट। तो अब देखो इसे, सॉरी z है यहाँ पर, 2z नहीं है, and this will be angle 1 plus 180 degree, 2 into 180 is 360, right, minus 2z। अब देखो z एक साइड पर चाहिए, बाकी सब एक साइड पर। अब ये माइनस 2z है तो मैं इसे पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी, मैं इसे 2z लिख दूंगी, और इक्वल्स टू के राइट साइड पर वी हैव 360 डिग्री। साइंस में कंफ्यूज नहीं रहना, इन्हें मैं वहां शिफ्ट कर रही हूँ, प्लस 180 माइनस 180 प्लस एंगल 1 माइनस एंगल 1, राइट। तो दिस विल बी 180 माइनस एंगल 1, आई थिंक आई हैव टू प्रोसीड इट हियर। तो 2z इज 2z क्या आ गया 180 माइनस एंगल 1, तो z विल बी 180 माइनस एंगल 1 बाय 2, ये जो 2 है वो दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो दिस इज 180 बाय 2 माइनस एंगल 1 बाय 2, z इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 और एंगल 1 बाय 2। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। आपको इतना सोचना ही नहीं है कैसे करना है, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखोगे दैट इज बिट complicated, so what you have to do, you have to apply 4 conditions, 2 angle sum property and 2 angles on straight line। उसके बाद you just have to focus कि मुझे कौन से 2 वेरिएबल्स चाहिए, I need z and 1, तो angle 2, angle 3 and x and y, ये चारों को एलिमिनेट करना है। पहले 2, 3 की वैल्यू एलिमिनेट करके यहाँ पे पुट किया, वहां से x, y का वैल्यू पुट कर दिया, राइट। सो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट will get। My last question, again very important question, my last question will be, ओके प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। व्हाट वी नीड, सबसे पहला क्वेश्चन, हमें क्या क्या वेरिएबल्स में हमारा रिजल्ट चाहिए। टीपीएस एंगल, एंगल टीपीएस, यानी कि मुझे ये चाहिए, आई विल अज्यूम इट एज 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया 1 इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू माइनस आर, दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, राइट। तो इन्हीं तीनों में रिजल्ट चाहिए, बाकी जो आएगा उसे एलिमिनेट करना, उसकी वैल्यू दूसरे में पुट करनी है, दैट्स इट। सी कंडीशंस क्या गिवन है, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ये हमें 90 डिग्री गिवन है, ये 90 है तो ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी 90, राइट।
सेकेंड कंडीशन इज PS इज एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल P। ये जो PS आपके पास लाइन जा रही है वो एंगल P का एंगल बाय सेक्टर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। दैट इज, इसको मैं बोल देती हूँ 3, दिस विल बी 2, ये छोटे वाला 2 है, तो 1 + 2 = 3, एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 3। ये हमें गिवन है, दिस इज माय गिवन कंडीशन। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, यू हैव टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्वाइस। एक बार इस ट्राइंगल पर ये ट्राइंगल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी पर, और एक बार ये कंप्लीट लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए। टू बिगिन विद आई विल बी टेकिंग ट्राइंगल PQT, ट्राइंगल PQT। PQT ट्राइंगल लिया, इसमें क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल Q, ये तो 90 है, इसे डायरेक्ट 90 लिख देते हैं, राइट। एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अभी देखो जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे एंगल Q और R चाहिए, तो मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेती हूँ। Q विल बी 180 माइनस 90 माइनस एंगल 2, तो यहाँ से Q विल बी, दिस इम्प्लाइज एंगल Q इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 2, राइट। क्या आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अनदर ट्राइंगल, मैंने बोला 2 ही ट्राइंगल्स लेने हैं, PTR, ट्राइंगल PTR, राइट। इसके अंदर अब देखो ये वाला पूरा, अब इस ट्राइंगल में तो ये है ना पूरा का पूरा, तो 1 + 3 हो जाएगा या नहीं होगा, राइट। एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये तो यही का यही हो गया, प्लस 90 डिग्री प्लस R, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से अगेन आई विल फाइंड आउट R, 180 माइनस 90 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3, तो ये कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज R विल बी 90 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3, राइट। ये दूसरी कंडीशन आ गई। नाउ जो हमें फाइंड करना है उसका मैं राइट हैंड साइड लेकर के चल रही हूँ, या सिंपली राइट हैंड साइड ना भी आप मेंशन करें तो डायरेक्टली हम इसे करते हैं एंगल Q माइनस R, हाफ नहीं ले रही हूँ मैं साथ में। नाउ एंगल Q माइनस एंगल R, सी एंगल Q क्या है आपके पास, 90 माइनस 2 माइनस एंगल R कितना है, 90 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3, राइट। सो दिस विल बी 90 माइनस एंगल 2 माइनस, अब नेगेटिव साइन है बाहर तो अंदर के साइन विल गेट चेंज, तो यहाँ से प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये और ये आपस में सब्ट्रैक्टेड, तो दिस विल बी माइनस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखो मुझे क्या चाहिए, QR चाहिए, साथ में चाहिए मुझे TPS, दैट इज एंगल 1, है ना। तो एंगल 1 इज ऑल दैट आई नीड। एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दो उसमें, चलो एंगल 3 क्या है, दिस इज 1 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1, तो इस 3 की वैल्यू को मैंने क्या पुट किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 फ्रॉम 1। अब ये 2 और माइनस एंगल 2 कैंसिल, तो एंगल Q माइनस एंगल R विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो यहाँ से एंगल 1 देखेंगे हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R, राइट। सो दिस इज माय सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं किया खास इसमें, अलग से एक बार इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, एक बार इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट्स इट। उसके बाद एंगल Q माइनस एंगल R मैंने फाइंड किया, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 1, और मैं ट्वाइस को 2 को यहाँ पर हाफ बना दिया, वो राइट हैंड साइड एज इट इज रखा। आई होप ये क्लास भी आप लोगों को क्लियर होगी। अगेन आई एम सेइंग इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर डू लेट मी नो, and we'll be discussing next chapter in our next video. Thank you so much.